We are starting from the topic, next topic. What is the next topic? The minimum spanning tree. Yesterday we have discussed about the graph and the traversal of the graph, how we will traverse of the graph from starting node to source node to destination. We have to reach or we have to visit at least all nodes. If we want to search thing, we have to compare the value and we have to find that value after visiting all the nodes. Somewhere it will be made, somewhere it will bound. We maybe go out from there also. So like this way, we have discussed yesterday DFS and BFS, birth first search and depth first search. Okay, birth first search is like level-wise search in which we are searching as a birth-wise, and in the DFS depth first search we are searching in depth-wise. First we will go in the depth and then we are coming to the backtracking. That was the BFS and DFS algorithm for traversal of the graph. Today we are trying to find the minimum spanning tree. What do you mean of minimum spanning tree? Minimum spanning tree means we want to travel the all node or we want to have some path to visit the every nodes. So what we have to do, we have to find out the minimum cost path. To travel from one node to any node, there should be some minimum path, minimum cost path. For example, one businessman want to travel some cities and he want to sell the materials. He have some items to sell or some products to sell out it. Clear? MPPT visible नहीं हो रही. Oh, sorry, I will show. I will share it. I think so. I forgot to share it window. Now I think so it will be visible. Clear? It is visible now? Yes, ma'am. So what we are discussing, minimum spanning tree means we are minimum is less, सबसे कम. So we want to see, we take one example to understand this problem or minimum spanning tree. There is a one businessman, he want to sell some products in some cities. Clear? There maybe he want to sell Patodi, Gurgaon and Delhi, Sona or Sonipat or Panipat, Rohtak, like this. These kind of cities he want to sell some products. So he need to be minimum cost to, he want to visit all the daily, he want to drop some products there and he say in the evening he want to collect some things back. So he want to the minimum cost of each visit. Businessman always try to be minimum cost and maximum earning, maximum benefits. Every businessman will try to like that कि उसको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होना चाहिए और कम से कम खर्चा होना चाहिए. तो वो क्या करेगा, उसको ये है कि मुझे वो मिनिमम पाथ मिल जाए जिसमें कम से कम टाइम और कम से कम कॉस्ट. कम टाइम लगेगा तो पाथ छोटा होगा, तभी कम टाइम लगेगा, और कम टाइम लगेगा तो ऑब्वियसली कॉस्ट हमारी कम होगी. कॉस्ट इन द टर्म, किराए की टर्म में हम बात करें तो वो भी कम होगा. अगर हम गाड़ी से ड्राइव करें तो कम डिस्टेंस होगा तो कम पेट्रोल जलेगा और टाइम कम लगेगा. तो he or she can visit all the cities wherever he want to visit. If it will take a more time, it will take, cost will be high, petrol ज़्यादा चलेगा, time ज़्यादा लगेगा, तो he is unable to visit all the, he will unable to visit all the cities. सभी cities पे visit नहीं कर पाएगा. इसलिए हमें क्या करना है कि हमें एक प्रॉब्लम, ये एक प्रॉब्लम है कि वो मिनिमम पाथ फाउंड आउट करें. तो दिस इज द कि हमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्यों? बिकॉज वी हैव टोल्ड ऑलरेडी कि देयर इज ए ग्राफ, देयर इज ए साइकिल, बट इन द ट्री देयर शुड नॉट बी ए साइकिल. So like this way we are trying to find out the minimum path using some algorithm or some techniques which will help us to find out the minimum spanning tree. Clear? So now we are coming to the first slides, that is minimum spanning tree. As we have already discussed, tree is connected, acyclic graph. Tree is connected but it is acyclic. There should be no cycle. Tree which is having a n node contain n minus one as. It's always less than n minus less than nodes. As is always less than the nodes because there should not be a cycles. Graph with node may contain less than or n into n minus 1 or n into n minus 1 by 2 edges. We can say graph that connect the all nodes together. Here we need to create the minimum spanning tree. A minimum spanning tree used to find the shortest route for all nodes from the roots. What is the minimum spanning tree? We need to find the shortest route for the all nodes from the root. We have decided one route at least
and we start from this route and find the path for every nodes, every vertices we have to be visited. But this should be a minimum. The total cost of the visiting paths, every vertex also it should be a less, and total of visiting, total cost of the visiting all nodes should be a less. अगर हम सभी नोड को विजिट करते हैं वो भी लेस होनी चाहिए, पर्टिकुलर नोड को विजिट करते हैं तो वो भी आपकी क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए. So to find the spanning tree, it must be sure that every node is connected to the rest of the node by edge. But इसमें हमारी सबसे मिनिमम कंडीशन एक ये भी रहेगी कि जिस नोड से आपने स्टार्ट करना, किसी से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, किसी को भी आप रूट मान कर सकते हैं. एनी नोड यू कैन डिसाइडेड एज ए रूट, जैसे हमने उसमें भी डिसाइड किया था मिनिमम स्पेनिंग, सॉरी इसमें जो अपना ट्रैवर्सल में भी हमने डिसाइड किया था. बट यहाँ पे मेरी जो सबसे बड़ी कंडीशन है, देयर शुड नॉट बी ए साइकिल, और अनदर थिंग इज ऑल नोड शुड बी कनेक्टेड. सभी हमारे पास सभी सिटीज में या सभी वर्टिस पे विजिट करने के लिए हमारे पास वे होना चाहिए. ऐसा नहीं हो कि भी हम उस पाथ पे ना जाए, चाहे वो किसी को फॉलो करके जाएं. जैसे अभी हम 3 जो पहला आप ग्राफ देख रहे होंगे, इसमें हम सभी नोड, सारे नोड एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. तो जैसे 4 नोड पे हमें 1 to 4 जाना है तो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, पर वी कैन विजिट 1 2 3 to 4 like this way. From 2 to, if we want to go to 5 node, we have to visit from 2 to 3 to 5. So but in second node you see all are connected, but there are less path there. 1 to 2, 2 to 4, 4 to 3 जा सकते हैं, और 4 के थ्रू ही आप 5 पे जा सकते हैं. Like this way, from one graph we are having a 3 minimum spanning tree. You can see this is the first is the given graph, and first, second, third is the minimum spanning tree of this given graph. इसमें इन तीनों ग्राफ में हमने क्या किया है, मिनिमम एज कवर करने की कोशिश की है कि हमारे पास मिनिमम एज हो. आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे जो हमने ग्राफ लिया है, इसमें हमारे पास 8 एजेस हैं, और बाकी सभी जगह पे आपने देखा होगा हमारे पास 50 हाफ n/2 एजेस हैं. सभी में हमारे पास सभी स्पेनिंग ट्री जो हमने इस ग्राफ से बनाई है, all are containing 4 edges. Using 4 edges, all 5 vertices are connected into, it means n-1 edges. So we need to be n- minimum हमारे पास कितने होंगे, n-1 edges होंगे minimum spanning tree में, because अगर आपके पास 3 नोड हैं तो you have to be 2 edges. अगर आपके पास 2 vertices हैं तो you need 2 edges to connect all the vertices. भी एक vertices से दूसरे vertices पे आपको travel करना है तो मिनिमम 2 एज आपको चाहिए. तो इट मींस वी कैन से टू एटलीस्ट हाउ मच मिनिमम एज इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट द मिनिमम स्पेनिंग ट्री, n-1 एजेस. n इज वर्टिसेस, तो n-1 एजेस. जैसे हमने पीछे भी डिस्कस किया था, यहाँ पे पहला फर्स्ट सेकंड है ट्री विच इज हैविंग n नोड कंटेन n-1 एजेस, इट इज ए मिनिमम स्पेनिंग ट्री. क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? मिनिमम स्पेनिंग ट्री क्या है? यस मैम. चला कि हमने क्या करना है कि मिनिमम पाथ हमने निकालना है, सभी वर्टिसेस के पास मिनिमम एजेस हमारे कवर होने चाहिए. मिनिमम एज होंगे तभी हमारा शॉर्टेस्ट पाथ आएगा. क्लियर? सो हियर यू से मिनिमम ट्री में हमने कहा कि जहां जहां दूसरा यहाँ पे जो कंडीशन है, देयर शुड नॉट बी ए लूप. अगर लूप होती है तो वो वहीं घूमता रहता है, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, लेंथी हो जाता है. हमें ऐसा है कि हर नोड को विजिट करना, और हर नोड एक बार ही विजिट हो, मतलब बार बार ऐसा ना हो कि वही स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हो. So here you see how many that our cycle is there in this graph, and we have removed all these cycles. We have to remove these cycles, and earlier we have shown all the same graph we have taken here. But how many cycles are possible here? I have shown here. यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कितने पॉसिबल साइकिल्स हैं. पहले में 1 3 2 कनेक्टेड है, ये भी अपने आप में साइकिल है. अब 1 से जाके 1 पे वापस आ सकते हैं, 3 से. हेलो, is there any query? No ma'am. No, okay. So I should continue. So first you see 1 2 3, any node we start, and that can be end also. So this is a cycle. Same in this first one, second one, that is circle. We have started 1 2 and again we have to come to 1, and if you start 2 4 5, there is a 1 2 4 and 5, this is a cycle, and 1 5 3 is a cycle. इन जो हमारा गिवन नोड है इसमें भी साइकिल है. गिवन जो ग्राफ है, दैट इज ऑटोमेटिकली लॉट ऑफ साइकिल्स आर देयर इन इट. So we have to be remove any, there should not be any kind of loop in the tree or roots. This is the condition of the minimum spanning tree. So tree to use minimum number of edges may include in spanning tree. हमारी try करेंगे, we will try
the minimum edges will be there. हमें क्या कोशिश करनी है कि हमारे edge कम से कम हो ट्री के अंदर, so that it will be a minimum path for the minimum spanning tree. Clear? So we have taken a weighted graph so that it will be easy to decide it कि which path is longer and which path is shorter, because it is in term of money or maybe it is term of distance. So we will take some weighted graph and we will implement this. Mainly the minimum spanning tree is for the weighted graph, so that because there only, because वैसे तो एज को देखने से तो हमें नहीं पता चलेगा कौन सा एज पास है, कौन सा दूर है, कितनी दूर है, किसकी कितनी कॉस्ट है. पर अगर हम वेट ले लेते हैं तो हमारे पास वेट हो सकता है कॉस्ट की टर्म में हो, वहां का किराया क्या है कि फेयर क्या है उसकी टर्म में हो. दूसरा क्या हो सकता है कि इट शुड बी मे बी इन टर्म ऑफ डिस्टेंस हो सकता है, तो डिस्टेंस लेस होगा तो भी हमारी कॉस्ट क्या होगी, लेस होगी. So always we are trying to find out the minimum spanning tree. There should be a weighted graph we take. Always we try. Otherwise तो सिर्फ all are minimum. Otherwise only edges can be minimized. कि भी कम से कम edge होंगे तो ही हमारे पास क्या होगा. यहाँ पे हम मिनिमम एज की बजाय ये भी देख सकते हैं कि कौन से एज को हम फॉलो करें ताकि हमारी कॉस्ट कम से कम लगे. क्लियर? सो जैसे मैंने ये हमारा जो ग्राफ है इसमें एज दिया कि 1 2 3 जो वेट है वो फर्स्ट है 1 है, 3 to 5 3 है, 1 to 5 6 है, और 5 to 4 अगर हम विजिट करते हैं तो 2 है, 2 to 4 विजिट करते हैं तो 7 है, 3 to 5 जाते हैं तो 5 है, 3 to 4 जाते हैं तो 5 है, और 3 to 2 जाते हैं तो कोस जो वो 3 है. लाइक दिस आई हैव असाइंड सम वैल्यूज. सो इसका अगर हम वेट का हिसाब से बनाए मिनिमम तो हमारा क्या बनता है कि हम पहले 1 से 3 पे जाए, मिनिमम वेट है, 3 to 5 पे मिनिमम वेट है, और 3 to 2 पे भी मिनिमम वेट है. सो और 2 to 4 तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास ओनली 9. हाउ मच इट इज? टोटल 9. अगर इससे मिनिमम कोई हो सकता है इसमें? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी मोर? आप मुझे और इस ग्राफ में देख के बता सकते हैं कि जो ये आपका सबसे मिनिमम है. नो, बिकॉज देर इज ए मिनिमम पाथ हमने लिया, जो शॉर्टेस्ट थे वो हमने लिए हैं, इसलिए दिस इज द मिनिमम स्पेनिंग ट्री ऑफ. हमने इसमें वेट क्यों किया? हमने इसलिए क्या, इट विल बी गिव मोर इफेक्टिव रिजल्ट. जैसे यहाँ पे वहां तो सिर्फ हमने ग्राफ देख लिया था, जैसे ये वाला हमारा ग्राफ था, यहाँ पे हमें मिल रहा था वी आर हैविंग ए नंबर ऑफ एजेस लेस, बट हम ये नहीं कह सकते कौन सा जो है हमारा मिनिमम कॉस्ट का होगा, बट यहाँ से हमें पता चल रहा है विच वन इज द मिनिमम कॉस्ट. क्लियर? उजाला क्लियर? अंजू? Yes, ma'am. So we go to the next slide. This is the application of that is application of minimum spanning tree. We can use communication problem if we want to communicate with each other. So we have to be maintain the distance from how it should be a like for example, I taken an example of salesman problem, a business salesman problem, and we can take a circuit diagram also. When we are designing the circuit, we take the minimum distance. टीवी केबल कनेक्शन इफ वी वांट टू डिस्ट्रीब्यूट इन एनी सिटी, किसी भी शहर में अगर आपको टीवी केबल का कनेक्शन देना है तो आपका क्या कोस्ट, आप क्या कोशिश करेंगे? अगर आपको कनेक्शन देना है किसी शहर में केबल कनेक्शन, तो आपकी क्या कोशिश रहे, कैसे कॉस्ट बचाएंगे? आप मुझे बताएंगे उजाला? केबल कम लगे मैम. हाँ, कि हम ऐसा बात करें कि हमारी केबल कम से कम, एक लाइन में जितने ज्यादा घर होंगे वहां केबल ज्यादा कनेक्शन देंगे, या हमारा कम से कम मतलब यही रहेगा कि डिस्टेंस कम से कम हो, कम से एक तो केबल हम सीधी जा सकती है, हम घुमा के लेके चले जाएं तो वो हमारी ज्यादा लगेगी, तो ऑब्वियसली हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. तो हमारी कोशिश रहेगी कि कम से कम हमारी केबल में मैक्सिमम कनेक्शन हो जाए, मैक्सिमम घर उस केबल के अंदर क्या हो जाए, कवर हो जाए. तो हमारी कम केबल लगेगी तो कॉस्ट कम हो जाएगी, और ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी इनकम इंक्रीज हो जाएगी. वी विल गेट ए बेनिफिट्स, यानी हमारी कॉस्ट जो है वो लेस हो जाएगी और बेनिफिट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. तो हमेशा हम ऐसे एज ए लॉट ऑफ आर देयर, लॉट ऑफ एप्लीकेशंस आर आल्सो अवेलेबल इन आई हैव टुक सम 1 or 2 3 ओनली फॉर एग्जांपल कि यू हैव टू बी अंडरस्टैंड इट. क्लियर? So there are algorithms to shortest path in there. There are two main shortest path algorithms existing data structure. These algorithms are also called the greedy algorithm because we are talking about the in term of benefits, advantage, or we can say we want to be and something. We want to save, we want to less cost. Therefore, these algorithms are called the greedy algorithm. हम कहते हैं कि ये algorithm हमारे जो है वो क्या है, लालची.
क्रूसाल एल्गोरिथम है, इसकी स्पेलिंग मैंने गलती लिख दिया, इसका स्पेल है, 1 मिनट प्लीज। क्रुस्कल है इस एल्गोरिथम का नाम, जो मेन है वो क्या है, क्रुस्कल। इट इज ए क्रुस्कल एल्गोरिथम। These are two greedy algorithms which are used to find out the shortest minimum spanning tree. Shortest path of algorithm we can say, or we can say it is a minimum spanning tree. Clear? Minimum spanning tree to find out the, we use these three. So first we are going to discuss this graph, Kruskal algorithm. What do you mean of Kruskal algorithm? This is applied on the weighted graph. This is applied on the weighted graph. Because there is a need of sort the weight in the increasing or decreasing order. There we need to be increasing, the paths should be sorted in the increasing and decreasing order. It should be generally like a sorted algorithm like that. हमने जो sorting algorithm पढ़े थे उसी की तरह है almost यहाँ पे भी, but the weight है तो वो आपका increasing या decreasing order की तरह ही है इसमें। तो इसमें हम क्या करते हैं, इन द क्रुस्कल एल्गोरिथम, क्रुस्कल एल्गोरिथम में वी हैव फाइंड आउट द एनी लोएस्ट कोड, हम किसी भी एक को मिनिमम मान के चलते हैं, दैट विल बी ए रूट फॉर अस वेट के अकॉर्डिंग। और जहां पे भी हमारे पास साइकिल होगी उसको हम इग्नोर करेंगे, वी विल इग्नोर द साइकिल वेर एवर इट विल बी एनकाउंटर्ड इन बिटवीन द विजिट। जब भी हम विजिट करेंगे किसी रूट से, एक रूट से दूसरे, एक वन रूट टू अनदर वर्टिसेस, एक वर्टिसेस से दूसरे वर्टिसेस पे विजिट करते हैं और वहां पे अगर हमारी साइकिल बनती है बीच में, तो वी विल बी रिमूव द साइकिल एंड विल टेक अनदर पाथ। इट इज जैसे अभी हमारे पास सारे वेज गिवन है। तो नेक्स्ट हमारे पास एल्गोरिथम क्या कहता है, व्हाट स्टेप वी हैव फॉलो। द क्रुस्कल जो आपका है, क्रुस्कल जो एल्गोरिथम है हमारे पास, क्रुस्कल जो है, व्हाट इज द मेन स्टेप ऑफ दिस क्रुस्कल इज सॉर्ट ऑल द एजेस इन लो टू हाई ऑर्डर ऑफ देयर वेट्स। जो भी हमारे पास एजेस हैं उनको हम क्या करेंगे, सबसे पहले we will sort in all the edges in low to high, and increasing order में उस वैल्यू को सेट करेंगे। और उसके बाद हम स्मॉलेस्ट वेट का एज उठाते जाएंगे और उसको क्या करेंगे, ऐड करते चले जाएंगे, ट्री बनाते जाएंगे, ऐड इट स्पैनिंग ट्री। वी विल चेक इट एवरी एज इफ इट इज फॉर्मिंग ए साइकिल इन द स्पैनिंग ट्री व्हाट वी आर क्रिएटिंग। जो स्पैनिंग ट्री हम बना रहे हैं उसमें अगर हम ऐड करते हैं एजेस को, ये साइकिल बनाता है, तो हम क्या करेंगे, उसको इग्नोर कर देंगे। अगर साइकिल नहीं बना रहा तो वी विल एड इट इन, हम उसको उसमें ऐड कर लेंगे। क्लियर हुआ? क्या करेंगे हम, स्मॉलेस्ट, सबसे पहले हमारे जो ट्री है गिवन, उसके जो भी एजेस हैं उनको वेट वाइज सॉर्ट कर लेंगे। सबसे पहले लेस वेट आएगा, फिर उससे इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलाएंगे, पहले कम वेट वाला, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। और उसके बाद हम उस वेटेज को जब तक सारे वर्टिसेस कवर नहीं हो जाते तब तक ऐड करते जाएंगे वन बाय वन। जहां पे भी साइकिल बनता जाएगा उस साइकिल को हम इग्नोर कर देंगे, साइकिल नहीं बनेगा तो हम उसको क्या कर देंगे, एज कर देंगे। और स्टेप 2 को हम जब तक रिपीट करेंगे जब तक हमारे ऑल वर्टिसेस v-1 एजेस इन द स्पैनिंग ट्री विल नॉट बी कवर। जब तक हमारे v-1 एजेस कवर नहीं हो जाते तब तक हम इसको कवर करेंगे। क्लियर? दीज आर स्टेप्स वी आर गोइंग टू फॉलो द क्रुस्कल एल्गोरिथम। क्रुस्कल में हम क्या करेंगे, these steps we will be follow। clear हुआ कि नहीं हुआ उजाला? is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So next what we are going to, we have taken this same graph but that we have already taken it and we have make first list of the graph। हमने अभी शॉर्ट नहीं किया, हमने पहले लिस्ट बनाई सभी एजेस की कि 1 to 2 कितना डिस्टेंस है। जैसे 1 to 2 आप देखेंगे तो 10 है पोस्ट जो हमारा वेट है, या हम 2 to 1 वापस पढ़ेंगे तो भी वही रहेगा बिकॉज इट इज ए अनडायरेक्टेड ग्राफ। क्लियर? ये हमारा क्या है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो दोनों साइड सेम ही पाथ रहेगा। Indirect. हाँ, और 1 to 5 जो है आपका वो क्या है, 6 है, और 1 to 3 जो है आपका, या रिवर्स भी आप इसको पढ़ सकते हैं, 2 to 4 7 है, 2 to 3 3 है, 3 to 5 भी 3 है आपका, 3 to 4 5 है, और 5 to 4 2 है। First we have created the make a list so that it become easy for us and we are taken weight of the all edges। सभी edges का हमने weight
जो था उसका वेट ले लिया और उसकी एक लिस्ट बना ली। नाउ विल मेक इट सॉर्ट, हम अब इसको सॉर्ट करेंगे। सबसे पहले छोटी वैल्यू का जो एज होगा उसको लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, इंक्रीजिंग ऑर्डर में वी विल क्रिएट द list that is in the sorted order like this way. This is the as list of sorted as with its weight. Clear? जो हमने लिस्ट ली थी we have make it is in a sorted order, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने इसको क्रिएट कर लिया। We have created the list of the as is in the order of sorted in the low to high increasing order. Clear हुआ यहाँ तक? It is very easy if you understand. Next, now we try Yes, to ma'am. make the list. Add one by one. सबसे पहले हमारा मिनिमम है 1 2 3. So we have add 1 2 3. There is a connection we have created. Next हमारा क्या है 5 to 4. That is minimum cost. Clear? इसको भी हमने ऐड कर दिया। उसके बाद हमारे पास मिला 3 to 2. That is also. But हम साथ साथ ये भी चेक करते नहीं कि there is a no cycle. अभी तक हमारी कोई साइकिल भी एग्जिस्ट नहीं करती है और मिनिमम वेट हमारा चल रहा है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट 3 था 5 to 3. क्लियर? सो नाउ आई थिंक सो दिस इज कंप्लीटेड बिकॉज वी हैव क्रिएटेड ऑल द vertices. All vertices are created, connected or not? All vertices connected? Yes, ma'am. And what about the cycle? There is a no cycle. How many edges are here? 5. How many edges are here? n minus 4 1. mm. हाँ 4 is means we can say, हमने कहा ना स्पेनिंग ट्री में कितने एजेस होंगे n minus 1. तो हमारे पास जो वर्टिसेस हैं वो कितने हैं 5 हैं और एजेस कितने हैं 4. तो कितना हो गया n minus 1 we can say 5. one vertices are 4 edges are minus 1. क्लियर हो गया? इसी से हमारे पास ये क्या है, ये हमारी मिनिमम स्पेनिंग ट्री है यूजिंग अगेन विच एल्गोरिथम। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, स्टार्टिंग से ही चल रही है इसमें मिस्टेक। क्लियर? हाँ अंजू, Yes, ma'am. एनी क्यूरी? नो डाउट? आई थिंक सो। अगर अब आपके पास कोई ग्राफ दे दे और आपको क्रिएट करना पड़ जाए इसका मिनिमम स्पेनिंग ट्री, तो यू विल एबल टू क्रिएट इट। आप इसे क्रिएट कर पाएंगे ना? Yes, ma'am. सो चले हम नेक्स्ट स्लाइड पे। लेट वी हैव टू मूव द Okay, ma'am. नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या है, नेक्स्ट एल्गोरिथम। व्हाट इज दिस एल्गोरिथम? दिस इज द प्रिम्स एल्गोरिथम। ये भी हमारा एक एल्गोरिथम है, जैसे हमें क्रूसाल पढ़ा है वैसे ही क्रूस्काल जो एल्गोरिथम था वैसे ही प्रिम्स एल्गोरिथम है। दैट इज आल्सो वन ग्रेडी एल्गोरिथम टू फाइंड आउट द मिनिमम स्पेनिंग ट्री विच फाइंड द लोकल ऑप्टिमम इट द होप ऑफ फाइंडिंग ए ग्लोबल ऑप्टिमम। मिनिमम जो ऑप्टिमम है ये लोकल में फाइंड आउट करेगा ग्लोबल की बजाय। इट स्टार्ट विद एम्पटी स्पेनिंग ट्री, इट इज आल्सो स्टार्टिंग विद मिनिमम स्पेनिंग ट्री। यहाँ पे हमारा मेनली क्या है, हम एक वर्टिसेस 2 सेट बनाएंगे वर्टिसेस का, maintain 2 set of vertices. First set contain the vertices already included in minimum spanning tree. Other one contain the vertices not yet included. जो अभी included नहीं है उनका set बनाते चले जाएंगे और जो included है उनको छोड़ता चले जाएंगे। उसके अकॉर्डिंग हम इसको फॉलो करेंगे। जैसे हमने पीछे BFS और DFS में ले रहे थे ना हम कि एक सेट बना रहे थे, उस सेट में स्टोर करते रह रहे थे। Every step you consider all edges that connected to set and pick the minimum weight as from these edges. उसमें से minimum weight वाला उठाएंगे और after picking the edge it move the other end point of the edge to set containing minimum spanning tree. यानी मेन क्या है, ये भी हमारा एक ग्रेडिंग एल्गोरिथम ही है। इसमें भी हमने वही करना है, मिनिमम वेट वाला ही एज हमने उठाना है। बस यहाँ पे आपने क्या करना है, डिफरेंस क्या है, वहां पे हमने पहले क्या किया, कुरशाल में हमने डाटा लिया और एजेस को सॉर्ट किया और सॉर्ट के बाद उसको कनेक्ट कर दिया। प्रिम्स क्या करता है, प्रिम्स एल्गी ओल्ड है, क्रूस्काल जो है वो बाद में आया। पहले हमारा प्रिम्स जो एल्गोरिथम है इट इज ओल्डेस्ट वन, वो इजी वे से करने के लिए उसके बाद हमारे पास क्रूस्काल है। तो प्रिम्स में मेन क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, एक सेट बनाते चले जाते हैं। जैसे कोई भी हमने रूट उठाया और उससे जितने भी कनेक्टेड नोड हैं, क्या करेंगे, जितने भी उससे कनेक्टेड नोड हैं, रिमेनिंग जो नोड है उन सब का डिस्टेंस ले लेंगे और उसमें से फिर मिनिमम उठाएंगे। फिर जो लास्ट कनेक्टेड एडजेसेंट नोड है उसको लेंगे और उससे फिर सारे कनेक्टेड नोड लेंगे और उसका टोटल वेट निकालते जाएंगे।
जिसमें से मिनिमम वेट आता जाएगा उसको हम उठाते चले जाएंगे और उसके साथ जोड़ते चले जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट एल्गोरिथम विल बी मोर क्लियर। यहाँ पे इसके स्टेप्स हैं, व्हाट स्टेप वी आर गोइंग टू फॉलो इन प्रिम्स एल्गोरिथम आर एज फॉलोज। इनिशियलाइज द मिनिमम स्पैनिंग ट्री विद वर्टेक्स चूजन एट रैंडम। कोई भी एक वर्टेक्स आप चूज करेंगे रैंडमली और उसको मिनिमम स्पैनिंग ट्री मान लेंगे और उसको 0 वेट असाइन कर देंगे पहली बार में। क्लियर? उसके बाद हमने क्या करना है, फाइंड ऑल द एजेस दैट कनेक्ट द ट्री टू न्यू वर्टिसेस, फाइंड द मिनिमम, ऐड इट टू द ट्री। उससे जितने भी कनेक्टेड एज हैं, जितने भी कनेक्टेड वर्टिसेस हैं नए जो उसके अलावा जो हमने शुरू किया उससे, उसमें से मिनिमम को फाइंड आउट करेंगे और वो उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। सेम थिंग वी हैव टू बी रिपीट टिल द वी विल नॉट फाइंड n-1 एजेस एंड मिनिमम स्पैनिंग ट्री। इसमें हमने ये भी देखना है हर ट्री में, चाहे वो क्रुस्कल हो चाहे प्रिम्स हो, लास्ट में हमने देखना कि कहीं जो टोटल कॉस्ट है सभी एजेस को ऐड करके वो कहीं और ऑप्शन तो अवेलेबल है कि नहीं है। तो लाइक दिस वे वी हैव टू बी चेक। सो यहाँ पे हमने क्या किया, सेम थिंग वी हैव टेकन, we have taken a same one another graph here, that is also a weighted graph we will take. Here also we will take the starting node will be assigned some value randomly we will take. This is the Prim's algorithm we have taken. This is the simple graph and we assign the weight here. This graph is containing the every edge will contain the weight. Now it is called the weighted graph. We have start from value 0 node से हम start करेंगे इसे और minimum value इसको 0 और we will pick the first node and take the all neighborhood of it. जितने भी इसके neighborhood हैं, जैसे 0 का neighborhood कौन है, 1 और 7 है। कौन कौन है, 1 और 7। So इसमें से which node is having a minimum weight? कौन से node का minimum weight है, 4। इसका है ये 0 to 1 का। Yes, exactly. So हमने इसी को यही किया, यहाँ पे वही किया, अपडेट दिया वैल्यू ऑफ अर्जेंसी नोड 1 and 7 एंड टू नोड विच हैविंग मिनिमम वैल्यू। हमने स्टेप 1 में क्या लिया, 0 को 0 वेट असाइन किया और स्टेप 2 में हमने क्या 0 और 1 और 0 और 7 में दो सेट बनाए वर्टिसेस के, उसमें से हमने फाइंड किया कौन सा मिनिमम है 0 से 1। तो उसको हमने पहले 0 को ग्रीन कर दिया था क्योंकि उसका वेट 0 था। उसके बाद हमने क्या किया, 1 को ग्रीन कर दिया कि दैट विल बी दी नोड फॉर विजिट बिकॉज इट इज हैविंग ए मिनिमम वेट। इसकी जो कॉस्ट है वो हमारी क्या है, कम है, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव सिलेक्टेड इन इट 1 to 2, ठीक है, और 0 to 7 आल्सो वी हैव कंसीडर। उसको हमने वो तो ले लिया था उस पाथ में, इस पाथ में भी हमने सर्च किया। तो यहाँ पे आप 2 और 7 में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बोथ आर इक्वल वैल्यू। तो फॉर एग्जाम्पल आई हैव सिलेक्टेड 7। क्लियर? आप 2 भी सिलेक्ट कर लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हमने लिया कि हमारे पास 7 to 8, क्योंकि हमने 7 को सिलेक्ट किया था, तो 7 वाला हम देखते हैं 7 to 8 और 7 to 6, which one is having the minimum? That is having minimum 7 to 6 मैम। yes, so we have selected 6. Clear? अब 6 से हम अगला नोड जो कनेक्टेड है उनको चेक करेंगे, 8 और 5। क्लियर? 8 और 5 में हमारा कौन सा है, 5 है, तो हम अब हमने 5 से 2, 3 और 4, 5 से जो कनेक्टेड नोड है दिस आर 2, 3 और 4 का अभी ग्राफ नहीं दिख रहा, ये भी कनेक्टेड। इसकी कॉस्ट है 10, उसकी 14 और 4। तो व्हाट इज द मिनिमम? मिनिमम इज 4 मैम 2। तो हमने किसको सिलेक्ट करेंगे, 2 को हमने सिलेक्ट कर लिया। अब हमने देखना है कि नेक्स्ट जो हमारा कॉस्ट होगा 8 का, 2 से अगर आप देखेंगे 2 से हमारे पास ऑप्शन है 8 के लिए, और 2 से हमारे पास 2 to 3 7 2 to, हाँ 2 ऑप्शन है हमारे पास 2 to 3 और 2 to 5 to 3। ये नोट हमारा मिस्टेक हो गई इसमें। आप ये देखेंगे ना हमारी ट्री कहाँ है, यहाँ पे है मेन ट्री। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे 2 के बाद हमारा कौन कौन से कनेक्शन है, 2 से 3 भी है और 2 से 8 भी है। क्लियर? क्या वेट है, यहाँ से आप देखेंगे इस ग्राफ से जो हमने स्टार्टिंग ग्राफ लिया है, 2 to 8 4 है और 2 to 3 क्या है, 4 है। 2 to 3 एंड 2 to 8 है। और 5 to 3 जो है वो कितना है, 14 है। क्योंकि इसके अब जो है हमारा अवेलेबल पाथ देखना हमने 2 से जो है 3 भी, क्योंकि अभी जो नोड है अब तक जो हमने ट्री बना चुके हैं, यहाँ थोड़ा सा माइनर सा चेंज इसलिए है कि अब तक हमें ट्री बना चुके हैं तो उसमें हमारे पास 2 to 3 भी पाथ है,
5 भी हम विजिट कर चुके हैं और 2 भी हम विजिट कर चुके हैं। तो हमारे पास 2 पाथ अवेलेबल है, 2 to 8, 2 to 3। इसमें से हम कौन सा सिलेक्ट कर लेंगे? 2 to 8। और जो हमारा पाथ है 5 to 3 और 2 to 3, 2 ऑप्शन है हमारे पास, है ना? कौन कौन से ऑप्शन है? 5 to 3 5 to 3 और 2 to और 2 to 3 हमने सिलेक्ट किया है। यही चीज हमने यहाँ पे की है, आप देखेंगे तो हमने 2 को सिलेक्ट किया, 8 को सिलेक्ट किया और उसके बाद हमने 3 को सिलेक्ट किया है। 3 to 4 और 5 to 4 में जो है वो भी 10 था, क्योंकि 5 to 4 भी जो है 10 है। तो नेक्स्ट हमारा ये वाला हमारा सिलेक्शन था यहाँ पे, और ये यहाँ पे हमारे पास 9 आ जाएगा। ये वाला जो सिलेक्शन है 3 to 4 और 5 to 4, आप यहाँ देखेंगे, इसमें ये इंसर्ट नहीं किया मैंने। यहाँ देखेंगे आप इस ग्राफ में 3 to 4 भी है और 5 to 4 भी है। 3 to 4 9 है और 5 to 4 कितना है? 10 है। क्लियर? So therefore we have selected this one. दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास इसमें बन सकता है। क्या ऑप्शन बन सकता है दूसरा? एक बार आप इसको देखेंगे, इस ग्राफ को, और आप इसको देखेंगे। मैं वो आपको इसके पास ही लेके आती हूँ, मेन वाला जो हमारा ग्राफ है मेन। आप मुझे बताएंगे विच वन वी कैन सिलेक्ट। नहीं, ये वेटेड वाला नहीं आया, दूसरा आ गया। वेटेड वाला लेके आती हूँ। आई विल सिलेक्ट द वेटेड वन। कौन सा ऑप्शन दूसरा बन सकता है, आप मुझे बताएंगे प्लीज। ये आपका अभी हमने सिलेक्ट किया है, इसके अलावा कौन सा ऑप्शन हो सकता है सेम? ये हमारा ग्राफ है, एक बार नजर मारिए। देखिए हमने विजिट किया है 0 से 7, 7 से 8, 6, 5, 5 to 2, 2 to 3, 3 to 4, ये क्या ना। और 0 से 1, 0 से 1 भी कनेक्टेड है और 7 भी कनेक्टेड है। उसके बाद 7 के बाद हमने लिया है 6। ये देखिए आपने 0 से 1, 7, 6, 5, 2, 8 और 3 और 4। दूसरा क्या ऑप्शन बन सकता है सेम कोस्ट में? इज इट पॉसिबल? अंजू उजाला, सी यू विल सी उजाला, हमने सेलेक्ट किया 0 से 7 और 1 to 2 आर हैविंग द सेम कोस्ट। नहीं, हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं। yes मैम। इसको अगर मैं इसका डुप्लीकेट बना के बनाऊं दूसरा, इफ आई विल से कि ये वाला जो वेट है ये हम यहाँ पे भी तो लगा सकते हैं। इट विल बी लाइक दिस वे। क्लियर? और ये जो वेट है आपका, बिकॉज यहाँ पे भी 8 है और वहां पे भी 8 है। नो साइकिल इज देयर, अदर पाथ इज नॉट चेंजिंग, अदर आर द मिनिमम वैल्यूज। देयर आर 2 मिनिमम स्पेनिंग ट्रीज पॉसिबल in this graph. This is also possible and this is also possible. Clear? ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। Because both are having, जैसे आपको याद हो हमने जब ये सिलेक्ट किए थे, it is there, both are having the same value. यहाँ पे देखो हमने कहा था both are having the equal value, so you can pick any one. इनमें से कोई भी एक आप पिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे यहाँ तक हमारा दोनों का सेम ऑप्शन था, तो इसलिए हमारे पास इसमें there are 2 minimum spanning trees possible here. Clear हो गया? yes ma'am। So if there is if graph is given, you can create the new tree, new minimum spanning tree. Any this kind of question can be arise in examination. और if they ask how minimum edges are here, आप बताइए इसमें कितने edges हैं हमारे पास, कितने नोड हैं और कितने वर्टिसेस हैं और कितने edges हैं? Is this graph बिल्कुल? हाँ जी, टेक्स्ट है। हाँ जी। जो वर्टिसेस हैं वो हमारे पास 9 है और एजेस हैं वो हमारे 9 पास और 8 है। हाँ 8। n सो हम कह minus सकते 1। हैं, अब अगर हम इसको वेरीफाई करें कि हमारी मिनिमम स्पैनिंग ट्री की क्या कंडीशन है, n-1 एजेस होने चाहिए। कितने एजेस होने चाहिए? n minus 1।
It condition is true. ma'am. It is fulfilling condition. Minimum weight होना चाहिए. There should be a no cycle. Is there any cycle here? अभी ये फिनिश होगी हमारी कॉल एंड होगी तो हम फिनिश करेंगे. इसके साथ ही और कोई टॉपिक और डिस्कस नहीं करेंगे. क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो. हेलो. So what we are discussing, we are checking the, we are verifying the condition. The window is visible. Yes, ma'am. What we are discussing, actually इसका टाइम ओवर हो जाता है ना, उसके बाद ये स्टार्ट हो जाता है, रिस्टार्ट हो जाता है. So what is the condition we are taking? First condition is edges should be n-1. So this is fulfilling the condition कि we are having 9 vertices and 8 edges. This condition is fulfilled. There is a no cycle. Is there any cycle in this graph? There is a no cycle. Either we will follow this one or this one. Both are not having any cycle. अगर हम इसके साथ 1 2 2 को जोड़ दे तो एक साइकिल बन जाता है. Clear? So therefore it should be a no cycle in between n-1 edges और minimum weight. आप टोटल करके निकालेंगे तो इससे मिनिमम पाथ कोई भी नहीं होगा. किसी भी और के थ्रू आप ऐड करेंगे. अनदर वर्टिसेस को ऐड करके अगर आप कनेक्ट करोगे तो वो इससे ज्यादा ही कॉस्ट होगी. तो हमने ये भी चेक कर लिया कि ये हमारा मिनिमम कॉस्ट है. इससे ज्यादा मिनिमम कॉस्ट का और कोई पाथ अवेलेबल नहीं है. इससे मिनिमम कॉस्ट पे दूसरा पाथ अवेलेबल नहीं है जिसमें सारे वर्टिसेस एक दूसरे से कनेक्टेड हो. जिसमें सभी वर्टिसेस क्या हो, एक दूसरे से कनेक्टेड हो. तो मिनिमम वेट हमने कंसीडर किया है. नो साइकिल एग्जिस्ट, दैट वी हैव ऑलरेडी चेक्ड. और तीसरी कंडीशन n-1 एज इज देयर. तीन ही कंडीशन थी मिनिमम स्पैनिंग ट्री की. ऑल थ्रीज आर फुलफिल्ड बाय द this graph which we have selected and we find the solution of it. Clear हो गया? Yes, ma'am. Is there any query related to this? कोई भी आपकी क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो. डिफरेंस भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया. वहां पे मेन जो डिफरेंस है क्रुस्कल में जो एल्गोरिथम है हमारा, क्रुस्कल जो एल्गोरिथम है उसमें और इसमें क्या मेन डिफरेंस है. यहाँ पे हम सेट ऑफ एजेस लेके चलते हैं. एक एज बनाते हैं और उसमें से उससे जो कनेक्टेड एज है उसमें से एक सेलेक्ट करते हैं मिनिमम वाला और उसको ऐड करते हैं. और क्रुस्कल में क्या था, वहां पे हम सॉर्टेड ऑर्डर में करते हैं और फिर सॉर्टेड ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसको कनेक्टेड करते हैं. इसमें साइकिल नहीं बनने देते हैं. So these are some main differences. बाकी कंडीशन तीनों की वही है मिनिमम स्पैनिंग ट्री की. n-1 एज होगी, साइकिल नहीं होगी और मिनिमम वेट होगा. But the way of designing the minimum spanning tree is different. In case of Kruskal, we have to sort the edges in the increasing or decreasing order and we have to create a tree taking one by one. Cycle will not be performed and all edges should not be connected. जब तक सारे edges connected नहीं होंगे, vertices connected नहीं होंगे और जब तक minimum spanning tree नहीं होगी, आपका minimum cost नहीं होगी इसमें और n-1 edges इसमें minimum रहेंगे आपके. Clear हो गया? So for today I think so it is finished. इसके आप algorithm ही पढ़ेंगे, इसके प्रोग्राम हम नहीं करेंगे, नहीं तो आपके पास ज्यादा प्रोग्राम हो जाएंगे. What is the status of file? फाइल का क्या स्टेटस है?